ایسے نوجوان موجود ہیں جو ڈریم 11 کے اندر ٹیم بنایا کرتے ہیں, جو مائی 11 سرکل کے اندر ٹیم بنایا کرتے ہیں, جو 3 پتی جیسے ایپلیکیشن کو استعمال کیا کرتے ہیں. اے نوجوانوں, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں قرآن تمہیں کون سا راستہ بتا رہا ہے. اے نوجوانوں, تمہارے لیے قرآن یہ راستہ بتا رہا ہے. آج جوے کا فتنہ ہمارے سماج کے اندر جو ہے اپنی جڑیں مضبوط کر چکی ہے. یہی معاملہ گھر کی نوجوانوں کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے, یہی معاملہ گھر کی نوجوانوں کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے. آپ کے گھروں کے اندر نوجوان ہیں, آپ کے گھروں کے اندر ایسے بچے موجود ہیں جس کی عمر ابھی 15 سال ہے, جس کی عمر ابھی 18 سال ہے, جس کی عمر ابھی 20 سال کی ہے. میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں, اپنے گھر کی نوجوانوں کو سدھارنے کی کوشش کریں. سننے میں تو یہاں تک آیا کہ آج معاشرے کے اندر اکثر نوجوان سٹے بازی جیسے ایپلیکیشن کے اندر ملوث ہے. آج معاشرے کے اندر, سماج کے اندر ایسے نوجوان موجود ہیں جو ڈریم 11 کے اندر ٹیم بنایا کرتے ہیں, جو مائی 11 سرکل کے اندر ٹیم بنایا کرتے ہیں, جو 3 پتی جیسے ایپلیکیشن کو استعمال کیا کرتے ہیں. اے نوجوانوں, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں قرآن تمہیں کون سا راستہ بتا رہا ہے. اے نوجوانوں, تمہارے لیے قرآن یہ راستہ بتا رہا ہے. آج جوے کا فتنہ ہمارے سماج کے اندر جو ہے اپنی جڑیں مضبوط کر چکی ہے. آج سٹے بازی کا فتنہ ہمارے سماج کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر چکی ہے. اے نوجوانوں, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں قرآن تمہیں ایک راستہ بتا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. اے لوگو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر جوے سے کمائی ہوئی دولت کو حرام کر دیا ہے. اے نوجوانوں, تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوے کو حرام کر دیا ہے. اگر تم جوے کے ذریعہ دولت کو حاصل کر رہے ہو, اگر تم جو ہے سٹے بازی کی ایپلیکیشن سے اگر تم دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو, تو یاد رکھو یہ راستہ تمہارے لیے غلط ہے, یہ راستہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے, یہ راستہ تمہارے لیے نجس ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو جوے کو حرام کر دیا ہے. اگر کوئی انسان ڈریم 11 کے اندر ٹیم بناتا ہے تو وہ آدمی جوا کھیل رہا ہے. اگر ایک انسان جو ہے 3 پتی کے اندر جو ہے ٹیم بناتا ہے تو وہ آدمی جوا کھیل رہا ہے. اگر ایک آدمی مائی 11 سرکل کے اندر ٹیم بناتا ہے تو وہ آدمی بھی جوا کھیل رہا ہے. اور یاد رکھنا, اگر تم ان ایپلیکیشن سے اگر تم دولت کو حاصل کر رہے ہو تو یہ دولت تمہارے لیے حرام ہے. اور اسی طرح کی دولت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان لکل امت فتنہ فتنۃ امتی المال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے پہلے تمام کی تمام امتیوں کو جو ہے فتنے میں مبتلا کیا ہے, اور میری امت کے لیے مال اس کے لیے فتنہ ہے. اگر تم جو ہے حرام طریقے سے دولت کو حاصل کر رہے ہو تو یہ دولت تمہارے لیے فتنہ ہے. اگر تم جوے کے ذریعہ دولت کو حاصل کر رہے ہو تو یہ پیسہ تمہارے لیے فتنہ ہے, یہ دولت تمہارے لیے فتنہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا نقشہ قرآن مجید کے اندر بھی کھینچ رہا ہے, انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اے لوگوں, یہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. یہاں پر ہمیں 2 چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے. ایک تو فتنہ ارتداد سے تعلق رکھتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مال اور اولاد تمہارے لیے دنیا کے اندر فتنہ ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مال اور دولت سے نوازا ہے اور اگر ان دولتوں کو تم غلط طریقے سے حاصل کر رہے ہو تو یہ مال تمہارے لیے فتنہ ہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اولاد سے نوازا ہے, تمہیں اولاد کی نعمت کو نوازا ہے, اور اگر تم اپنے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر رہے ہو, اگر تم اپنے اولاد کو دین اسلام سے روشناس نہیں کرا رہے ہو, اگر اپنے گھر کی بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ نہیں کر رہے ہو, اگر تم اپنے گھر کی بچیوں کو دینی تعلیم سے نہیں جوڑ رہے ہو, تو یاد رکھنا یہی اولاد تمہارے لیے فتنہ بننے والا ہے, جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے.
इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। ऐ लोगों, ये औलाद तुम्हारे लिए फितना है, ये औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है, ये औलाद तुम्हारे लिए इम्तिहान है। ये औलाद तुम्हारे लिए फितना है, तुम्हारे लिए इम्तिहान है और तुम्हारे लिए आजमाइश है। अल्लाह ने अगर औलाद अता किया है तो उस औलाद को दीनी तालीम से रोशनास कराए, ताकि वो औलाद, ताकि वो बच्चियाँ, ताकि वो हमारी बहनें, ताकि वो हमारी बेटियाँ इर्तिदाद जैसे फितने से बचे रहे और इर्तिदाद जैसे फितने से दूर रहे। मेरे अजीज साथियों, तो एक रीज़न ये है, इर्तिदाद की एक वजह ये है कि आज हमारे घरों के अंदर जो बेदीनी फैली हुई है, यही वजह है कि आज हमारी घरों की बच्चियां, आज हमारे घर की लड़कियां इर्तिदाद जैसे फितने के अंदर मुलव्विस है और फंस रही है और दीन इस्लाम को छोड़ रही है। एक वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि आज हमारे समाज और मुआशरे के अंदर कोई ऐसा मंसूबा नहीं है, कोई ऐसा प्लानिंग नहीं है, कोई ऐसा इदारा नहीं है जिस इदारे में पढ़ करके हमारी बच्चियां जो है आला तालीम हासिल कर सके और दीनी तालीम से रोशनास हो सके। मेरे अजीज साथियों, अगर हमारे समाज और मुआशरे के अंदर जो है कोई ऐसा मंसूबा और प्लानिंग नहीं होगी तो याद रहे, हम अपनी बच्चियों को इर्तिदाद जैसे फितने से नहीं रोक सकते, क्योंकि हर समाज और हर मुआशरा अपनी बच्ची को आला तालीम दिलाने की कोशिश करता है, अपनी बच्चियों को डॉक्टर बनाने की कोशिश करता है, अपनी बच्चियों को इंजीनियर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे दीनी तालीम से रोशनास कराने की कोशिश नहीं करता। मेरे अजीज साथियों, यहाँ पर एक बात और मैं वाज़ेह कर दूँ, इर्तिदाद के फितने में जितनी भी लड़कियाँ आज जो है मुलव्विस हुई है, उनमें से ज़्यादातर वो लड़कियाँ जो कॉलेज के अंदर पढ़ा करती है, उनमें से ज़्यादातर वो लड़कियां जो यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ा करती है, जिसका वाबस्ता दीनी तालीम से नहीं है, जिसका जो है ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, जिसके घर के अंदर पर्दे का हुक्म नहीं दिया जाता, ऐसे घर की लड़कियां आज इर्तिदाद जैसे फितने के अंदर मुलव्विस है। मेरे अजीज साथियों, मैं एक मजमून को आपके सामने एक मिसाल के तौर पर पेश कर रहा हूँ, जिससे आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर अगर कोई मंसूबा नहीं होगा, कोई प्लानिंग नहीं होगी, कोई आज हमारे पास अगर दीनी तालीम के लिए कोई इदारा नहीं होगा, तो याद रखना हम अपनी बच्चियों को इर्तिदाद के फितने से हरगिज़ नहीं बचा सकते, नहीं बचा सकते, क्योंकि हमारे पास मंसूबा नहीं है। एक मजमून निगार लिखते हैं इसी इदारे के ताल्लुक से और मंसूबा न होने के ताल्लुक से, एक मजमून निगार लिखते हैं कि एक मरतबा मैं कलकत्ता से पटना की तरफ निकला, एक मरतबा मैं सफ़र के इरादे से कलकत्ता से पटना की तरफ निकला। जब मैं ट्रेन के अंदर बैठा और जब मैं ट्रेन के अंदर सवार हो गया तो मैंने एक ऐसे इंसान को देखा जो कुर्ते पाजामे में मलबूस है, जो वाइट कलर का कपड़ा पहना हुआ है और उसके चेहरे के अंदर दाढ़ी मौजूद है। उसके शक्ल से ऐसा महसूस हो रहा था कि वो आदमी आलिम दीन है, उसके शक्ल से पता चल रहा था कि वो आदमी आलिम दीन है। उसके साथ एक बच्ची है, उसके साथ एक लड़की थी जो बुरके के अंदर मलबूस थी। वो लड़की आकर के सामने वाली एक सीट के अंदर बैठ जाती है। इतने में वो इंसान जिसकी बेटी थी वो इंसान मुझे देख लेता है और मेरे सामने आकर के मुझे सलाम करता है, मुझे और मेरे सामने आकर के सलाम पेश करता है। मैं उसका जवाब देता हूँ। वो आदमी मुझसे कहता है, वो सूफी बासफ़ा इंसान मुझसे कहता है कि ऐ मेरे भाई, इस ट्रेन के अंदर मुझे तो कोई ऐसा इंसान नहीं लग रहा है जो मेरी बेटी की निगहबानी कर सके। ऐ भाई जान, मैं आपके हवाले अपनी बेटी को करके जा रहा हूँ। ये मेरी बेटी है जो पटना के अंदर जो है आला तालीम हासिल करने के लिए जा रही है, डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए पटना जा रही है। मेरे अजीज साथियों, वो मजमून निगार कहते हैं कि मैं उस इंसान को, उस आलिम दीन को एतमाद में लेता हूँ और मैं उसे ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं इसे
पटना की सरजमीन तक छोड़ूंगा, मैं पटना तक इसकी निगहबानी करूंगा। इतने में वो इंसान खुश हो जाता है और जो है ट्रेन से उतर जाता है, ट्रेन से नीचे आ जाता है और वहां से गाड़ी निकलती है, वहां से ट्रेन निकलती है और कुछ स्टेशन दूर जाने के बाद मैंने देखा जहां पर वो बुर्के में मलबूस लड़की बैठी हुई थी, बिल्कुल उसके सामने वाली सीट पर आकर के एक नौजवान आकर के बैठता है, एक नौजवान आकर के बैठता है जिसके हाथ में एक लोहे का कड़ा है और दूसरे हाथ में एक भगवा कलर का धागा बंधा हुआ है। वो नौजवान उसी लड़की के सामने वाली सीट पर आकर के बैठ जाता है। मैं देखता हूँ, मैं खामोश रह जाता हूँ, मैं उस नौजवान से कुछ नहीं कहता। मैं कुछ दूर जाने के बाद फिर जब मैंने उस लड़की की तरफ देखा तो अब मैं देख रहा हूँ कि वो नौजवान जिसके हाथों में कड़ा पहना हुआ है, जो अपने हाथों में धागा बंधा हुआ है, जिसके हाथ में ज़ाफ़रानी कलर का धागा बंधा हुआ है, वो नौजवान उस लड़की से बात करना शुरू कर देता है, उस लड़की से गुफ्तगू करना शुरू कर देता है। यहाँ पर भी मैं खामोश रह जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि हो सकता है कि किसी मखसूस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू हो रही हो, इसलिए मैं खामोश रह जाता हूँ। फिर और कुछ दूर जाने के बाद मैंने देखा, कुछ और दूर चले जाने के बाद मैंने देखा कि अब तो वो दोनों आपस में घुल मिल चुकी थी और एक दूसरे से जो है सरगोशियाँ करना शुरू कर चुकी थी। वो लड़की जो है उस मर्द से जो है हंसना और बोलना शुरू कर चुकी थी। अब मैं जो है उठने के लिए तैयार हुआ, जाकर के मैं उस नौजवान को रोकूंगा, जाकर के मैं उस नौजवान को मना करूंगा, लेकिन मेरी बीवी मेरे साथ मौजूद थी। मेरी बीवी मेरे हाथों को पकड़ लेती है और कहती है कि शोहर सरताज, कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़की आपके ऊपर कोई घिनौना इल्ज़ाम लगा दे, कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़की आपके ऊपर जो है न जाने कोई तोहमत लगा दे, उसे छोड़ दिया जाए। मेरे अजीज साथियों, वो मज़मून निगार लिखते हैं और वो मज़मून निगार बयान करते हैं कि मैंने उसी लड़की को देखा, मैंने उसी लड़की को देखा जिस लड़की को उसके बाप ने ट्रेन के अंदर बुर्के में मलबूस करके बैठा करके गया था। अब वो लड़की अपने चेहरे से पर्दे को हटा चुकी थी, अपने चेहरे से जो है निकाब को हटा चुकी थी। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करें, वो मज़मून निगार बयान करते हैं। अब मैं जब जो है पटना के रेलवे स्टेशन तक पहुंचता हूं, अब मैं उसी लड़की को देखता हूं कि उसके जिस्म से भी जो है बुर्का उतर चुकी है। वो लड़की जो है अपने जिस्म से बुर्के को उतार चुकी है और उसको अपने बैग के अंदर रख चुकी है और आम लिबास में वो जो है पटना के रेलवे स्टेशन के अंदर उतरती है। यहीं तक हद नहीं है, यहीं तक इंतहा नहीं है। वो मज़मून निगार कहते हैं कि मेरे इन गुनहगार आंखों ने उस लड़की को देखा कि उस लड़की ने अपने हाथों में उस नौजवान के हाथों को डाल करके पटना के रेलवे स्टेशन से निकलती है। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करो, ये वही है जो भगवा लव ट्रैप के नाम पर आज मुस्लिम समाज की लड़कियों को दीन इस्लाम से मुर्तद कर रहे हैं। मेरे अजीज साथियों, वो मज़मून निगार कहते हैं कि मैंने अपनी नज़रों से देखा कि वो लड़की उनकी उस नौजवान के हाथों में हाथें डाल करके जो है पटना के रेलवे स्टेशन से निकलती है। मेरे अजीज साथियों, वो मज़मून निगार कहते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ों को देखने के बाद मैंने तो अपने दिल के अंदर एक ही बात को सोचा और वो बात ये थी कि काश ए लड़की, काश तेरे बाप का नंबर मेरे पास मौजूद होता, काश मैं तेरे बाप का नंबर ले लिया होता ताकि मैं तुम्हारी असलियत को तुम्हारे बाप तक पहुंचा देता, ताकि मैं तुम्हारी हकीकत को तुम्हारे बाप के सामने बयान कर देता कि जिस बेटी को वो आला तालीम के लिए पटना के अंदर भेज रही है, वो बेटी तो फितने इर्तिदाद के अंदर मुलव्वस हो चुकी है, वो बेटी तो जो है अपनी दीन को बेच चुकी है। जिस बेटी को वो आदमी पर्दे
के अंदर मलबूस करके पटना भेजता है, वो लड़की आज तो बेनकाब हो चुकी है, अपने पर्दे को अपने जिस्म से उतार चुकी है। मेरे अजीज साथियों, अंदाज़ा लगाएं, ये इर्तिदाद का फितना है, ये इर्तिदाद का फितना है। और इसका एक रीज़न ये है कि अगर हमारे पास बेहतरीन इदारे मौजूद होते, अगर हमारे पास तालीम के लिए अगर बेहतरीन इदारे मौजूद होते, तो ये दिन हमें देखना न पड़ता। मेरे अजीज साथियों, ये भगवा लब ट्रैप के नाम पर, घर वापसी के नाम पर बाकायदा मुआवजा तय किया जाता है कि अगर कोई इंसान मुस्लिम घराने की लड़कियों को उसके दीन से अगर फेर देता है तो हम उसे इतना मुआवजा देंगे। आज जो इस्लाम के दुश्मन पार्टियां हैं वो अपनी नौजवानों को मुस्लिम लड़कियों को बहकाने के लिए बाकायदा जो है लाख, 1.5 लाख, 2 लाख न जाने कितने रुपये को निछावर कर रहे हैं, इसीलिए कि मुस्लिम घराने की बच्चियों को घर वापसी कराया जाए। और आज़ादी निस्बा के नाम पर और भगवा लब ट्रैप के नाम पर आज हमारे घर की माएँ और हमारे घर की बहनें इस तरह के फितने के अंदर फंस रही है और अपने ईमान को बेच रही है, अपने ईमान को जो है बालाए ताक रख करके दीन इस्लाम को छोड़ करके उस शिर्क के दलदल में जा करके फंस रही है, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, इल्लल्लज़ीना आमनू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्ज़ि ज़हबन व लव इफ्तदा बि। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों के बारे में बयान कर रहा है जो इंसान इस्लाम के दायरे के अंदर दाखिल हो जाने के बाद, जो आदमी इस्लाम के दायरे के अंदर दाखिल हो जाने के बाद अगर कोई आदमी इस्लाम को छोड़ देता है, अगर कोई आदमी इस्लाम को अलविदा कह देता है और मुर्तद हो जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि कल क़यामत के दिन अगर ये आदमी उसी हालत में मर जाता है, वमातु वहुम इन्नल्लज़ीना कफ़रू वमातु वहुम कुफ़्फ़ारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि अगर कोई इंसान कुफ्र का इर्तिकाब करता है और उसकी मौत अगर कुफ्र की हालत में यूँ हो जाती है, तो वो इंसान क़यामत के दिन अगर पहाड़ के बराबर भी सोना लेकर के आएगा, फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्ज़ि ज़हबन व लव इफ्तदा बि, अगर पहाड़ के बराबर भी सोना लेकर के आएगा तो हम उसके सोने को कबूल नहीं करेंगे, बल्कि हम तो उसे जहन्नम के अंदर दाखिल करेंगे। ऐ बुजुर्गों, ऐ नौजवानों, ऐ मुआशरे और समाज के अंदर जो है लीडर किस्म के लोगों, इस आयती करीमा को जो है अपने घर की बहनों के सामने, अपने घर की बेटियों के सामने बयान कर दें, अपने घर की माओं और बहनों के सामने इस आयती करीमा को खोल करके बयान कर दें कि अगर तुम इर्तिदाद जैसे फितने के अंदर अगर फंसते हो तो याद रखना अल्लाह तबारक व तआला ने तुम जैसे लोगों के लिए ही जहन्नम को तैयार करके रखा है, तुम जैसे लोगों के लिए ही अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को तैयार करके रखा है। तो मेरे अजीज साथियों, इर्तिदाद का और इर्तिदाद के अंदर फितने, इर्तिदाद की जो फितने हैं इसके अंदर फंसने और इर्तिदाद के फितने जो आज हमारे समाज और मुआशरे के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर रही है, इसका दूसरा रीज़न जो है वो ये है कि आज हमारे पास कोई ऐसा इदारा नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा प्लानिंग नहीं है जिसके ज़रिया हम अपने बच्चियों को दीनी तालीम से रोशनास करा सकें, अपने बच्चियों तक हम जो है दीनी तालीम को पहुंचा सकें और हम अपनी बच्चियों को इर्तिदाद जैसे फितने से रोक सकें। मेरे अजीज साथियों, यहीं पर मैं और एक चीज़ की तरफ इशारा कर दूं कि आज हमारे घरों के अंदर शिर्क का बोलबाला है, आज हमारे घरों के अंदर शिर्क का बोलबाला है। एक रीज़न ये भी है कि आज हमारे घर की बच्चियां जो है इर्तिदाद के फितने की तरफ जा रही है, इसका जीता जागता उदाहरण एक शिर्क भी है। शिर्क की वजह से एक इंसान जब अपने घरों के अंदर शिर्क जैसे कामों का इर्तिकाब करता है तो उस घर की बच्चियों और उस घर के बच्चों के जहनों के अंदर यही चीज़ बेबस्त होती है कि मुशरिकीन दीन जो है, जो मुशरिक हैं उनमें और हमारे घर के
کے اندر جو افراد ہیں ان میں تو کوئی فرق نہیں ہے، وہ انسان بھی شرک کرتا ہے اور ہمارے گھر والے بھی شرک کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری گھر کی لڑکیاں جو ہے ارتداد کے فتنے کے اندر پھنس رہی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ایک فتنہ شرک کا بھی فتنہ ہے، ہم اور آپ اس فتنے کو چھوٹا سمجھ لیتے ہیں، ہم اس فتنے کو جو ہے بونا سمجھ لیتے ہیں اور یہ سمجھ کر کے ہم اس چیز کو ویلو نہیں دیتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج اگر ہماری گھروں کے اندر شرک کا بول بالا ہے تو یاد رہے اگر ہم کچھ بھی نیکی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول نہیں کرے گا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو شرک سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول کو بھی پیدا کریں گے، اپنے گھر کی بچوں کو اور اپنے گھر کی بچیوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق پرورش کرنے کی کوشش کریں گے، اور کوشش نہیں بلکہ ہمیں پرورش کرنی ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق، اور ہمیں اسے قرآن اور حدیث کے اصولوں کو بھی بتانی ہے، اور ان کے لیے کچھ ایسا منصوبہ اور پلاننگ بھی بنائی جائے جہاں سے ہم اپنے سماج اور معاشرے کی بچیوں تک دینی تعلیم کو پہنچا سکیں اور ہم شرک سے بھی دور رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی کئی وعید کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شرک کی حوالہ کو بیان کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شرک کے فتنے کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ سے پہلے سورہ انعام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی تمام انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اے لوگوں، اگر میرے انبیاء جس کا تذکرہ میں نے اوپر کیا ہے اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ہم اس کی نیکیوں کو بھی تباہ و برباد کر دیتے، ہم اس کی نیکیوں کو بھی غارت کر دیتے، ہم اس کی نیکیوں کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کریں ہم اور آپ ارتداد جیسے فتنے سے بچنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو شرک جیسے فتنے سے بچنے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر ایک انسان شرک کا ارتکاب کرتا ہے، اگر ایک انسان شرک کی غلاظت کی طرف جاتا ہے، شرک کی گندگی کی طرف جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم اس انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیں گے، ہم اس کی نیکیوں کو غارت کر دیں گے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر میرے انبیاء، اگر میرے رسول بھی شرک کرتے، اگر میرے انبیاء جس کے لیے میں نے جنت کے اندر بالا خانہ تیار کر کے رکھا ہے، اگر یہ رسول بھی شرک جیسے کاموں کا ارتکاب کر لیتے، اگر یہ لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو حاجت روا مان لیتے تو ہم اس کے نیکیوں کو بھی تباہ و برباد کر دیتے، ہم اس کی نیکیوں کو بھی غارت کر دیتے، ہم اس کے نامہ اعمال کو بھی برباد کر کے رکھ دیتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ شرک کی حوالہ کی ہے، یہ شرک کا فتنہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کے اندر بھی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہے، اپنے آخری وقت پر ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانے والے ہیں، اپنے آخری وقت پر موجود ہیں، اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانے والے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے یہ کلمے ادا کر رہے ہیں اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، ایسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے اوپر اور نصارہ کے اوپر جو ہے بد دعا بھی کر رہے ہیں، لعنت بھی کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
आगे बयान फरमा रहे हैं, इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने अपने नबियों की कब्रों को सजदा करने की जगह बना लिया, अपने रसूलों की कब्रों को चूमने और चाटने की जगह बना लिया, सजदा करने की जगह बना लिया। और इन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ करके जो है अपने नबियों को जो है हाजत रवा मानना शुरू कर दिया। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला से जो है अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ भी कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री वसनन युअबद। परवरदिगार आलम, मेरी इस दुनिया से चले जाने के बाद, मेरी इस दुनिया से जो है वफात पा जाने के बाद, इस दुनिया से चले जाने के बाद मेरी कब्र को सजदा करने की जगह ना बना देना, मेरी कब्र को चूमने और चाटने की जगह ना बना देना, मेरी कब्र को जो है चिरागा करने की जगह ना बना देना। मेरे अजीज साथियों, ये शिर्क का फितना है, ये शिर्क की हवलनाकी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरजुल मौत में भी मुब्तला है और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर रहे हैं कि परवरदिगार आलम, मेरी उम्मतियों को शिर्क जैसे फितने से बचा ले, मेरी उम्मतियों को शिर्क जैसी ग़लाज़त से बचा ले। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करने की कोशिश करें, गौर व फिक्र करें कि अल्लाह तबारक व तआला अपने रसूलों के बारे में कह रहे हैं कि अगर ये लोग शिर्क करते तो हम इसके नाम अमाल को बर्बाद कर देते। और अल्लाह के नबी जो है यहूदियों और नसारा के ऊपर लानत कर रहे हैं इस वजह से कि वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ अपने नबियों को शरीक मानते हैं, ठहराते हैं और हाजत रवा मानते हैं। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला जो है अल्लाह तबारक व तआला के सामने दुआ कर रहे हैं और लानत भी कर रहे हैं। तो मेरे अजीज साथियों, आज समाज और मुआशरे के अंदर शिर्क के फितने जो है अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी है। जिस तरह हम और आप इर्तिदाद के फितने से बचने की कोशिश करते हैं, जिस तरह हम और आप इर्तिदाद के फितने से जो है बचने की कोशिश करें, बिल्कुल इसी तरह हम और आप शिर्क की ग़लाज़त से भी बचने की कोशिश करें। मेरे अजीज साथियों, ये एक फितना जो है आज हमारे समाज और मुआशरे के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी है और हमें और आपको ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप इस तरह के फितनों से बचने की कोशिश करें। अगर हम और आप इस तरह के फितने के अंदर फंस जाते हैं, अगर हम और आप इस तरह के फितने के अंदर फंस करके अगर हम अपने ईमान को बर्बाद कर लेते हैं तो मेरे अजीज साथियों, हम और आप उसी हदीस के मिस्दाक है जिस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह के वक्त वो आदमी मोमिन होगा लेकिन शाम होते होते वो आदमी काफिर हो जाएगा। तो मेरे अजीज साथियों, ये शिर्क जो है और फितने इर्तिदाद के ताल्लुक से चंद बातें मैंने आप लोगों के सामने पेश किया। उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इस तरह के फितनों से जो है बचने की तौफीक अता फरमाए।